Assalamualaikum students, welcome back to online class of English. This is Ms. Nosheen and I hope you all are fine and safe at your home. In last class we had learned rule number 1 of indirect speech, and in today's class we will learn second rule of indirect speech. So rule number 2 is, if your reporting verb is in past tense, then following changes will be made. And what are those changes? Let's see here. First one is commas, means comma and inverted comma will be replaced by that. Said to will be replaced by told. Tense changes as per rule. Pronoun changes as per rule. And other word changes. Okay. Rule number 2 is, if your reporting verb is in past tense, then following changes will be made. Commas will be replaced by that. Said to will be replaced by told. Tense changes as per rule. Pronoun changes as per rule. And other word changes. Pronoun changes रूल नंबर 1 में मैं आपको सिखा चुकी हूँ. सिर्फ अब हमने देखना है कि टेंस चेंजेस में क्या क्या है और अदर वर्ड चेंजेस में क्या क्या है. मीन्स दैट कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा. Okay students, as you can see on your screen, here I have written down all tense changes. Present definite will be changed into past indefinite. Present continuous will be changed into past continuous. Present perfect will be changed into past perfect. And present perfect continuous will be changed into past perfect continuous. In short, all tenses of present will be changed by all tenses of past respectively. मतलब प्रेजेंट के सारे टेंसेस को पास्ट के सारे टेंसेस से तरतीब से हम चेंज कर देंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा. प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो पास्ट का कंटिन्यूस हो जाएगा. अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम उसको चेंज कर देंगे. ओके, नाउ लेट्स सी पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट एंड past perfect continuous will not be changed. Means that past के दोनों tenses को हम past के ही दोनों tenses से respectively change करेंगे. Starting के दो, end के दोनों से change हो जाएंगे. Repeat कर रही हूँ मैं, past indefinite के दोनों tenses आपस में ही change होते हैं. मतलब past indefinite के first वाले past indefinite को पास्ट परफेक्ट से करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से करेंगे, और लास्ट के जो दो बचे हैं यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो चेंज नहीं होते, उनको हम एज इट इज़ लिखते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नो चेंज. ठीक है. प्रेजेंट के टेंस हो गए, पास्ट के टेंसेस की भी चेंजेस आपने सीख ली हैं. अब है फ्यूचर. फ्यूचर में कुछ भी नहीं करना. फ्यूचर में टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपने ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ भी विल यूज़ होगा हम उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल यूज़ करते हैं तो वो वुड में चेंज हो जाएगा. फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी यूज़ करते हैं हम तो वुड बी हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज़ करते हैं तो वुड हैव हो जाएगा. सेम लाइक दैट इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वी यूज़ विल हैव बीन तो वहाँ पर हम कर देंगे वुड हैव बीन.
ठीक है, इसलिए मैंने सारे टेंसेस लिखे नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे भी विल यूज़ होगा हम उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे. दैट्स इट. नाउ लुक एट अदर चेंजेस, मीन्स दैट अदर वर्ड्स जो चेंज करेंगे हम वो क्या क्या है. ओके, अदर वर्ड्स चेंजेस लगते हैं. अब हम क्या है अदर वर्ड्स चेंजेस. Okay, these are the other minor changes. Now we'll be changing to then, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, tonight, that night, here, there, this, that, these, those, it, that, may, might, can, could, must, had to. तो ये सारे other minor changes हैं. Okay, now we will do some examples by following rule number 2. Example number 1 is, she said to me, comma, inverted comma, I have done my work. Example number 2 is, they said, comma, inverted comma, we are having a good time. Example number 3, he said to her, you can join me. Number 4, I said to them, I love my country. Number 5, she said to me, I saw you yesterday. Number 6 is, Sana said, I will go to Lahore tomorrow. Okay. Here I have written down 6 examples. Now we will convert them into indirect speech. So let's see. First one is, she said to me, I have done my work. तो हम इसको convert करेंगे. She, said to will be changed into told. She told me that she had done her work. ठीक है. She told me that she had done her work. रूल नंबर 2 को फॉलो करके हमने सेंटेंस को चेंज किया है. सेड टू की जगह टोल्ड आ गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज़ किया है हमने. प्रोनाउन चेंजेस किया है एज पर रूल. एंड व्हाट इज़ दैट रूल? अगर प्रोनाउन में हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे.
सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे आई शी से रिप्लेस हो गया. शी. टेंस चेंजेस किया हमने. प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. आई हैव डन माई वर्क था, तो शी हैड डन. फिर से यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है. हमने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज किया है, तो फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट से चेंज हुआ है तो हमने उसका पॉजेसिव केस ही यूज़ किया है. शी का पॉजेसिव केस होता है हर, तो शी हैड डन हर वर्क. ठीक है. नेक्स्ट है दे सेड वी आर हैविंग अ गुड टाइम. दे सेड को सेड रहने देंगे. अगर सेड के बाद टू होता तो फिर हम उसको टोल्ड में चेंज करते. टू नहीं है तो हमें उसको टोल्ड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. दे सेड कॉमा विल बी रिप्लेस बाय दैट. प्रोनाउन चेंजेस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से. दे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. दे वर हैविंग अ गुड टाइम. ठीक है. ही सेड टू हर यू कैन ज्वाइन मी. ही सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में. ही टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज़ करेंगे. यू कैन ज्वाइन मी सेकेंड पर्सन है. अब सेकेंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं. जब हम यू को हर से चेंज करेंगे तो आ जाएगा शी. ठीक है. शी क्यों यूज़ करेंगे? यू को तो हमने हर से चेंज किया है, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में भी है, तो इसलिए हम हर का भी सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे जो होता है शी. शी कैन को चेंज कर देंगे कुड में. अदर माइनर चेंजेस मैं आपको सिखा चुकी हूँ. शी कुड ज्वाइन. अब यहाँ पे मी लिखा हुआ है. फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारा ही. फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम सब्जेक्ट मतलब ही का भी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे और वो हो जाएगा हिम. साथ साथ मैं आपको प्रोनाउन चेंजेस भी दोबारा से रिपीट करवाते जा रही हूँ. लास्ट वीडियो में भी मैं आपको प्रोनाउन चेंजेस सिखा चुकी हूँ. अभी भी साथ साथ बताने का मकसद ये है कि प्रोनाउन चेंजेस थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो एग्जाम्पल से समझना उनको ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैं साथ साथ आपको प्रोनाउन चेंजेस भी सिखा रही हूँ. ओके. नेक्स्ट वन है आई सेड टू देम आई लव माई कंट्री. आई टोल्ड देम दैट. फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ही रहेगा. आई लव. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में. सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे. आई लव्ड माई कंट्री. ठीक है. शी सेड टू मी आई सॉ यू यस्टरडे. शी टोल्ड मी दैट. फिर से हमारे पास फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो आ जाएगा शी. आई सॉ यू यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में. शी हैड सीन. सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी. शी हैड सीन मी. यस्टरडे को चेंज कर देंगे हम द प्रीवियस डे में. The previous day. She told me that she had seen me the previous day. Okay, last one example is Sana said. Sana said, comma inverted comma की जगह that. फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, आई की जगह आ जाएगा she. I will go to Lahore tomorrow. She would go to Lahore the next day. ठीक है. Sana said that she would go to Lahore the next day. विल यूज़ हुआ है यहाँ पे, हमने कोई टेंस नहीं किया, चेंज नहीं किया, सिर्फ विल की जगह वुड यूज़ कर दिया. और अदर माइनर चेंजेस में टुमारो था, तो फिर हमने टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया. ओके, आई होप कि आपको सारी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गई. रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कुछ भी नहीं है इसमें.
सिर्फ क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच के जितने भी रूल्स हैं उसको समझने के लिए यू मस्ट हैव कमांड ऑन टेंसेस। आपको टेंसेस में कमांड होना चाहिए। अगर आपको टेंस में कमांड है तो ही आप इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझ सकते हैं। टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, इवन हर क्लास में ही हम करते हैं टेंसेस, ठीक है। अगर आपको टेंसेस में कमांड होगा तो आपको सेंटेंस पढ़कर ही समझ आ जाएगा कि कौन सा टेंस है, और जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है तो आपको ये भी पता होगा कि इसको किस में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आपको टेंसेस में कमांड नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा टेंस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए तो कुछ बेसिक्स रूल हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस होती है जो हम करते हैं, लेकिन असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है टेंस। अगर आपको टेंस आता है तो ही आप नरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इनडायरेक्ट स्पीच सीखने से पहले अपनी कॉपी खोलें और टेंसेस, सारे टेंसेस को रिवाइज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कौन सा टेंस कैसे बनता है, ताकि जब आप सेंटेंस पढ़ें तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा टेंस है। जब आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। और एक जो दूसरी चीज़ है वो प्रोनाउन चेंजेस है इनडायरेक्ट स्पीच में डिफ़िकल्ट। प्रोनाउन चेंजेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी और अभी भी साथ साथ आपको एग्जाम्पल से समझाइए, और एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि प्रोनाउन में अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन होता है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन चेंजेस में थर्ड पर्सन होता है तो हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर देंगे और सेकंड को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे। और बस साथ साथ सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि उसका कौन सा केस यूज़ हो रहा है। प्रोनाउन के हमारे पास 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजिटिव केस होता है। जैसे आई सब्जेक्टिव केस है, माई यहाँ पे पॉजिटिव केस है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मी ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है जो प्रोनाउन, वो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। और पॉजिटिव केस क्या होता है? जो प्रोनाउन पॉजिटिवनेस शो करते हैं, जैसे माई मेरा काम, माई वर्क, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोनाउन के केसेस जो हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रही हूँ दोबारा से, ठीक है। रूल नंबर 1 भी हमने कर लिया, रूल नंबर 2 भी हमने कर लिया इनडायरेक्ट स्पीच का। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आता, सो यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। We will discuss the remaining rules in the next video, in the next class. Till then, stay safe, take care. Allah Hafiz.